السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا کے بحران کے چلتے جاری لاک ڈاؤن کے بعد بھی کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 90,000 کو پار کر چکی ہے، جبکہ اب تک 2,872 لوگ کورونا کی لپیٹ میں آ کر جان گنوا چکے ہیں۔ حالانکہ اب تک 34,109 کورونا مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں میں کووڈ-19 کے نئے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں۔ ممبئی، دلی، احمد آباد میں کورونا کے زیادہ مریض موجود ہیں۔ ملک میں اب تک کورونا کے کل 90,927 معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ وہیں لاک ڈاؤن کے تیسرے مرحلے کے آخری دن یعنی 17 مئی کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4,987 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج 17 مئی ہے اور آج ہی لاک ڈاؤن 3 کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ پورے ملک کو انتظار ہے کہ لاک ڈاؤن 4 کے کیا قاعدے قانون ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے خطاب میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن 4 نئے رنگ روپ میں ملک میں لاگو ہوگا۔ واضح ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن کا آج 53واں دن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 24 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، تب یہ لاک ڈاؤن 21 دنوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن 2 کی اعلان کیا گیا۔ لاک ڈاؤن 2 کی میعاد 3 مئی تک تھی۔ اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کو 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا تھا۔ اب آج لاک ڈاؤن 3 کی آخری تاریخ ہے۔ لاک ڈاؤن کو لاگو ہوئے بھلے ہی 50 دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن کورونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، پچھلے 50 دنوں میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہندوستان میں اس کے پازیٹیو کیسز کی رفتار دھیمی ضرور رہی ہے۔ اتر پردیش کے سہارنپور میں گھر لوٹ رہے پیدل مزدوروں نے ہنگامہ شروع کر دیا ہے۔ یہ سبھی اپنے گھر بہار واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن پولیس والوں نے انہیں روک رکھا ہے۔ اسی وجہ سے مزدوروں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اور امبالہ ہائی وے جام کر دیا۔ مزدوروں نے پولیس والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ یا تو انہیں آگے بڑھنے دیا جائے یا پھر ان کی واپسی کے لیے ٹرین کا انتظام کیا جائے، وہ اب یہیں جام کر بیٹھے رہیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے۔ سہارنپور امبالہ ہائی وے پر کافی مزدور اکٹھا ہو گئے ہیں۔ سبھی بہار کی نتیش حکومت اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 20 لاکھ کروڑ روپے کے خصوصی پیکیج پر اب مودی حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ چکی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے 20 لاکھ کروڑ کے پیکیج کو فی الحال کوڑے دان میں ڈالتے ہوئے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ اس وقت قرض دینے کا اعلان کرنے کے بجائے آپ سیدھے غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی جیب میں پیسے ڈالیں۔ لوکل ووکل کے سوال پر راہل گاندھی نے کہا کہ بھوکے پیٹ کو کھانا دو، پھر لوکل ووکل کی بات کرنا۔ کورونا متاثرین سے رابطے میں آنے والے افراد کو احتیاط کے طور پر 14 دنوں کے لیے کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے اور اس مدت میں کسی طرح کی علامت ظاہر نہ ہونے پر سینٹر سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں کوارنٹائن کیے گئے تبلیغی جماعت کے کارکنان کے معاملے میں ان گائیڈ لائن پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرٹھ میں ہی مختلف کوارنٹائن سینٹروں میں سینکڑوں جماعتی گزشتہ 1.5 ماہ سے اپنی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرٹھ کی سردنا تحصیل کے جین انٹر کالج کوارنٹائن سینٹر میں 90 میں سے 56 جماعتی کارکنان کو تو 45 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گزشتہ روز ان افراد سے ملاقات کے بعد قاضی سردنا نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے انہیں ڈسچارج کرنے کی گزارش کی ہے۔ وہیں تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کے ساتھ ہو رہے برتاؤ کو لے کر نائب شہر قاضی میرٹھ اور جمیعت علماء ہند شہر میرٹھ کے ذمہ داران نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے انہیں ڈسچارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک کی مختلف مزدور تنظیموں نے اتر پردیش اور مدھیہ پردیش اور ملک کی دیگر ریاستوں میں مزدوروں سے متعلق قوانین میں ترمیم کے خلاف 22 مئی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں ان تنظیموں نے کہا کہ حال ہی کے دنوں میں ملک کی کچھ ریاستوں میں لیبر قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہے وہ مجرمانہ نوعیت کی بے رحمانہ حرکت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاستیں مرکز کے اشارے پر مزدوروں سے متعلق قوانین میں ترمیم کر کے ان کو ان تمام اختیارات سے محروم کر رہی ہے جو انہیں طویل تحریک کے نتیجے میں حاصل ہوئے تھے۔ اپوزیشن پارٹیوں اور مزدور یونینوں کی جانب سے سخت تنقیدوں کا سامنا کرنے کے بعد اتر پردیش کی یوگی حکومت نے مزدوروں سے ایک دن میں 12 گھنٹے کام لینے کا حکم دینے والے نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا ہے۔ ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جواب طلب کیے جانے کے بعد کیا ہے۔ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ اب تک ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ کوارنٹائن سینٹر میں انہیں الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان میں کئی بیرون ممالک سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں جو جلد از جلد اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اس درمیان مدھیہ پردیش کی شیوراج حکومت تبلیغی جماعت اراکین کے خلاف سخت رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بھوپال میں پولیس نے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 71 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں بیشتر بیرون ملکی ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ جن 71 تبلیغی جماعت اراکین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے 35 کو جیل بھیجا گیا ہے جبکہ 36 کو حراست میں رکھا گیا ہے۔
कोरोना वायरस बहरान के दौरान मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम नफरत को उरूज पर पहुंचाने की कोशिशों के बावजूद लोगों ने अभी तक इंसानियत और भाईचारे को पूरी तरह से फरामोश नहीं किया है। लॉकडाउन के दौरान मुतअद्दिद ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां मुसलमानों ने हिंदुओं और हिंदुओं ने मुसलमानों की मदद की। ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां मुसलमानों ने 21 हिंदू मजदूरों की मदद की। इत्तला के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती से मजदूरों का एक ग्रुप लुधियाना से साइकिल पर सफर करते हुए सहारनपुर के गांव पठमलपुर पहुंचा, जहां एक बाग में आराम करने के इरादे से रुका। ये एक मुसलमान का बाग था। एक मुहाजिर मजदूर महेंद्र के मुताबिक, जब मैं भूखा थका हुआ था और मेरे पांव बुरी तरह सूज गए थे तो मुसलमानों ने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। उन्होंने दूसरे मुहाजिर मजदूरों की भी मदद की जो अपने गाँव जा रहे थे। महेंद्र ने कहा, 4 दिन साइकिल चलाने के बाद मैं 21 दीगर मजदूरों के साथ लुधियाना से सहारनपुर पहुंचा था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के सरबराह स्वामी अग्निवेश ने वजीर आजम मोदी के 20 लाख करोड़ के मुआशी पैकेज पर तनकीद करते हुए कहा कि इसमें गरीबों और मुहाजिर मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमारी तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज के ड्रामाई ऐलान ने गरीबों में उम्मीद पैदा की थी जिन्हें फौरी इमदाद की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे तफसीलात सामने आ रही है उम्मीद मायूसी में तब्दील होने लगी है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 2 माह तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुहाजिर मजदूरों के खानदान को फराहम करने की पेशकश को छोड़कर गरीबों और शदीद परेशानियों में मुब्तला लोगों के लिए इस बड़े पैकेज में कुछ भी नजर नहीं आता है। मरकजी हुकूमत जो कम से कम काम कर सकती थी और अब भी कर सकती है वो ये है कि मुहाजिर मजदूरों को इनके घरों तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट मुहैया कराए। पुजारियों की एक कुलहीन तंजीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक शैतानी वबा है और इसे सिर्फ देविया शक्तियों यानी आसमानी ताकतों के जरिए खत्म किया जा सकता है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के कौमी सदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तहरीर करदा खत में कहा कि अगर तमाम मंदिर, धार्मिक स्थल और यात्रा के मराकज़ खोल दिए जाएँ तो कोरोना वायरस कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उन्होंने कहा कि मंदिरों को बंद करने का पुजारियों की माली हालत पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने पुजारियों के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म के नाम एक खत में पाठक ने कहा, मौजूदा हालात में बाज़ पाबंदियों के साथ मजहबी मकामात को दोबारा खोला जा सकता है। दिफा, हवाबाजी, कोयला और दीगर शोबों में काबिल लिहाज अहम इस्लाहात का आगाज़ करने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की सताइश की है। उन्होंने कहा कि ये गैर मामूली इक़दाम से हिंदुस्तान खुद मुख्तफी होगा। अपने सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिखा कि वज़ीर आज़म का इस्लाहात, कारकर्दगी और मुंतकली का मंतर हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 6 बरसों में नज़रियाती तरक्की के लिए कलीदी इक़दाम रहा है। क्वारंटाइन सेंटर की मशक्क़तों और नाकर्दा गुनाहों की लानत व मलामत झेल रहे तमिलनाडु के 442 तबलीगी जमातियों को आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के जरिए तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु वापस भेजा गया। अदरे के मरकज का मामला सामने आने के बाद 2000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल कर लाया गया था, जो या तो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए या अस्पताल में दाखिल किए गए थे। 1.5 माह बाद दिल्ली हुकूमत ने सभी जिला इंतजामिया को हिदायत दी थी कि तबलीगी जमात के मेंबर को क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत यानी WHO की फंडिंग बहाल करने का फैसला किया है। ट्रंप ने एक माह कबल WHO की फंडिंग रोकने का ऐलान किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका WHO को इतनी ही फंडिंग देगा जितनी चीन आलमी इदारे को फराहम करेगा। ट्रंप ने इस ऐलान के साथ ये उम्मीद भी जाहिर की कि मौजूदा बहरान के दौरान आलमी इदारा तामीरी किरदार अदा करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रवां बरस के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी और इसे मुफ्त फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। ताहम अमेरिकी साइंसदानों ने कहा कि इस साल वैक्सीन की बड़े पैमाने पर फराहमी का इम्कान नहीं है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने वैक्सीन की तैयारी में तेजी लाने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड का ऐलान किया, जिसकी सरबराही चीफ साइंसदान और अमेरिकी फौज के जनरल करेंगे। एक ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना के बेशतर अजला कोरोना वायरस से अमलन नजात हासिल कर चुके हैं, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी जिला अभी भी वायरस के वाक़ात में मुसलसिल इजाफे के सबब अवाम के लिए पुरखतर बना हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में कोरोना के नए केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और रोज़ाना औसत 40 से ज़ायद पॉजिटिव केसेस का मंजर-ए-आम पर आना महकमा सेहत और हुकूमत के लिए तशवीश का बाज़ बना हुआ है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि ग्रेटर हैदराबाद के 4 जोन्स कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हैं। इनमें चार मीनार, मलकपेट, कारवान और एलवी नगर जोन शामिल हैं। इन जोन्स में रोज़ाना कोरोना के नए केसेस का मंजर-ए-आम पर आना शहरियों के लिए तशवीश का बाज़ बना हुआ है। इसके अलावा दीगर रियासतों से हैदराबाद पहुंचने वाले माइग्रेंट वर्कर्स में कोरोना पॉजिटिव के मामला मंजर-ए-आम पर आए, जिसके बाद से हैदराबाद में मौजूद लाखों माइग्रेंट वर्कर्स की सेहत के बारे में खुसूसी टीमों ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है।
बैक वक्त तमाम माइग्रेंट वर्कर्स का टेस्ट मुमकिन नहीं, लिहाजा ऐसे वर्कर्स जिनमें इब्तदाई अलामत पाई जाए इनका टेस्ट किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मजाफती इलाकों चैतन्यपुरी, पठानचेरू और चंदानगर को नए कोरोना केसेस मंजरेआम पर आने के बाद से खुसूसी निगरानी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में वायरस के वाक़ात में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 जोन चारमीनार, मलकपेट और कारवान में हुकूमत लॉकडाउन में सख्ती पैदा करने का मंसूबा बना रही है। तेलंगाना में हफ्ते को एक दिन में कोरोना वायरस के 55 नए केसेस पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें 43 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद हुदूद से बताया गया है। कहा गया है कि इनमें 23 वो केसेस शामिल हैं जो मादनापेट के एक अपार्टमेंट ही से निकले हैं, जो एक बर्थडे पार्टी का साना है। इसके अलावा 2 पॉजिटिव केसेस रंगारेड्डी से आए हैं और 4 तारिकीन वतन मजदूरों के जो यादाद्री से सामने आए हैं। संगारेड्डी में 2 गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की तौसीक हुई है। इसी तरह जगतियाल से 2 और जनगांव और मंचरियाल से एक कोरोना पॉजिटिव केसेस की इत्तला मिली है। हैदराबाद में कोरोना के केसेस में इजाफे के नतीजे में इसे रेड जोन में शामिल किया गया है और बड़े पैमाने पर तिजारती पाबंदियां आयद की गई है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे कारोबारियों ने ठेला बंडियों पर कपड़े, चप्पलों और ख्वातीन और बच्चों से मुतालिक मुख्तलिफ अशिया के कारोबार का आगाज किया, लेकिन लॉकडाउन की तहदीदात का बहाना बनाकर पुलिस ने छोटे कारोबारियों के सामान को जब्त करके इन पर मुकदमात दर्ज किए हैं। लॉकडाउन की पाबंदियां जाहिर है कि छोटे और बड़े दोनों ताजिरों के लिए है। जब गरीब ठेला बंडी रानों पर पुलिस कार्रवाई करती है तो इसे बड़े कारोबारियों के साथ भी यकसां सलूक करना चाहिए। एक तरफ पुराने शहर में छोटे कारोबारी पुलिस के निशाने पर हैं तो दूसरी तरफ पुराने शहर के ही पत्थरगट्टी इलाके में कपड़ों के कारोबारी होलसेल मार्केट में खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। कपड़ों की तिजारत पर रेड जोन इलाके में पाबंदी आए थे, लेकिन पुलिस से मिली भगत से बड़े कारोबारी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। रात देर गई ये कारोबार शुरू होता है जो सुबह 8 बजे तक जारी रहता है। रात की तारीकी में ऑटो, ट्रालियों और रिक्शों में कपड़ा मुंतकिल किया जा रहा है। बास ताजिर अपनी 2 व्हीलर पर कपड़ा मुंतकिल कर रहे हैं। होलसेल मार्केट की यह सरगर्मियां पुलिस के इल्म में ज़रूर है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बड़े ताजिरों ने किसी तरह पुलिस को मनवाया है, लिहाजा देखकर भी पुलिस अनजान बन रही है। इन इलाकों में रिहायशी मकानात व अपार्टमेंट्स को इन सरगर्मियों से मुश्किलात का सामना है। 3 दिन कबल काटेदन में देखे गए चीते की तलाश जारी है, जबकि मुकामी अवाम ने दावा किया है कि इस चीते को हिमायत सागर में पानी पीते हुए देखा गया। अवाम ने इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस और महकमा जंगलात के हुकाम ने हिमायत सागर के इलाके में इसकी तलाश शुरू कर दी है। ये चीता सबसे पहले 14 मई को काटेदन इलाके में नजर आया था। पुलिस व महकमा जंगलात की जानिब से इसको पकड़ने की कोशिश की गई थी, ताहम ये चीता एक फार्म हाउस में दाखिल हो गया था और अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। अब इत्तला मिली है कि यह हिमायत सागर के आसपास के इलाके में देखा गया है।